بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ واقعہ بھی وہی اوپر والا ہی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ یہ ربی بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا فتح مکہ میں، یعنی فتح مکہ کا واقعہ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قیام کیا، وہاں ٹھہرے ہم وہاں 15 روز، 30 رات اور دن کے درمیان، یعنی 15 رات اگر ہوگا تو رات اور دن ملا کر کے 30 ہو جائے گا۔ تو ہمیں اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نکاح متعہ کے بارے میں۔ تو نکلا میں اور میری قوم کا ایک آدمی، اور میرے لیے اس پر فضل تھا جمال میں، یعنی میں اس سے خوبصورت تھا۔ وہ ہوا قریب من الدمامہ، دمامہ مانے بدصورتی، اور وہ بدصورتی کے قریب تھا، یعنی میں خوبصورت تھا وہ بدصورت تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ چادر تھی، میری فبردی، میری چادر خلقن بوسیدہ تھی، یعنی پرانی تھی۔ وہ اما برد ابن عمی فبردن جدید، لیکن میرے چچا زاد بھائی کی چادر تو وہ نئی چادر تھی، غضن نرم و نازک تھی، یعنی کپڑا اس کا اچھا تھا، شکل و صورت اور جوانی میری تھی۔ یہاں تک کہ جب ہم مکہ کے نچلے حصے میں، نچلے علاقے میں یا اس کے اوپر والے علاقے میں آئے تو ملی ہم سے ایک جوان عورت، مثل البقرہ العنتنہ۔ اس کے پہلے آیتا کا لفظ آیا تھا، نہیں، بکرتن آیتا، اسی کے معنی انت میں نتا نہیں سے آئے انت نتا ان تاناتہ، یعنی دو تا ہے، دو تا انت ہے، نتا سے کہ دو نون انت ہے اور نتتی، دو نون ہے اور دو تا ہے نا۔ جی انت نون پر نتتی، نون پر کیا حرکت ان کیا نون پر؟ تانا تاتی، ان تانا تاتی، تو ہمارے یہاں فتحہ دیا ہوا نون پر۔ وہی تو سے انت نتتی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے یہاں جو نسخہ اس پہ بھی نون پر فتحہ دیا ہوا ہے۔ انت ناتاتی، ہاں تو فتحہ ہی پڑھیے، اس میں وہ لگا رکھا ہے، سکون لگا رکھا ہے۔ تو معنی اس کا بھی وہی ہے جو آیتا کا تھا، یعنی لمبی گردن والی، مثل البقرۃ العنت ناتہ، لمبی گردن والی جوان اونٹنی کی طرح۔ تو ہم نے کہا کہ کیا تجھ کو رغبت ہے اس بات کی کہ تجھ سے ہم میں سے کوئی ایک فائدہ اٹھائے، یعنی نکاح متعہ کر لے؟ اس نے کہا ماذا تبذلان، تم دونوں خرچ کیا کرو گے، یعنی کیا دو گے؟ تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی چادر پھیلا دی، یعنی پھیلا کے دکھانے لگے۔ تو وہ دیکھنے لگی دونوں آدمیوں کی طرف، اور دیکھتا تھا اس کو میرا ساتھی، ینظر الی عطفها، عطف مانے جانب، اس کے پہلو کو وہ دیکھ رہا تھا۔ فقال، تو کہا اس آدمی نے کہ اس کی چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور نرم و نازک ہے۔ فتقول، تو وہ عورت کہنے لگی
बुर्दो हादा ला बासा बिही, इसकी चादर में कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो जवान थे। तीन बार ये बात हुई या 2 मरतबा। सुमस्तमता तो मिनहा, फिर मैंने उससे निकाह मुता किया। फिर नहीं निकला मैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम कर दिया। यानी फतेह मक्का के मौके पर 3 दिन का तक इसको दोबारा हलाल कर दिया गया था, फिर उसको हराम कर दिया गया। और आगे रिवायत आएगी कि हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए उसको हराम कर दिया गया। चलो इसके बाद वाली भी छोड़ दो। शेख एक उसके सवाल नीचे है है मोहम्मद बिन नुमैर। जी जी, इस दरमियान में अगर मौदा क्या होगा तो सुबह 5 में तो बच्चे हाँ, हो सकता है। बच्चे के इस क्या बाप दरमियान का में क्या नाम होगा? बेटा इसकी हैसियत तो वही होगी ना जैसे ज़िना करते थे लोग। जैसे जी जी जमाने जाहिलियत में ज़िना होता था, तो वही सूरत इसकी भी होगी। यानी बच्चा किसी बाप की तरफ नहीं मंसूब होगा, बल्कि माँ की तरफ मंसूब होगा। वलदु ज़िना जी की जैसे निस्बत होती है। जी। चलो, इसीलिए तो शरीयत ने इस किस्म की जितनी चीजें थी, जितने तरीके थे निकाह के, सबको हराम किया। इसलिए कि नस्ल की हिफाजत इस्लाम में बहुत अहम और बुनियादी चीज है। हिफ्जुन नस्ल। चलो, قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن صبرة الجهني أن أباه الله حدثه حدث. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أضنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. चलो, कोई खास बात नहीं है। जो कुछ दिया है, यानी मुआवजा जो तय था और जो दे दिया था, अगर मुद्दत बाकी बची है तो भी उसको लौटाना नहीं है। जो दे दिया उसका हो गया। इसके बाद भी दोनों सनदें छोड़ दीजिए। قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيتاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا 3 ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. तो ये वाकया भी वही है। वो अपने बाप सबरा बिन माबद से रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के साल हुक्म दिया अपने असहाब को बित्तमत्तु मिनन निसा, औरतों से फायदा उठाने का, यानी निकाह मुता का। रावी कहते हैं कि फिर निकला मैं और मेरा एक साथी, बनु सलेम कबीला है, बनु सलेम से, यहाँ तक कि पाया हमने एक लड़की बनु आमिर की, गोया कि वो जवान लंबी गर्दन वाली ऊँटनी है। फ़ख़तबना है यला नफ्सिहा, तो हमने उसके पास उसके नफ्स का पैगाम भेजा, यानी निकाह के लिए, निकाह मुता के लिए, और पेश किया हमने उस पर अपनी चादरों को। दोनों ने अपनी अपनी चादर पेश की, तो वो देखने लगी। फजालत तंजुरो, तो वो देखने लगी, यानी दोनों को देख रही थी। फतरानी अजमल मिन साहिबी, तो मुझे ज्यादा खूबसूरत देखा मेरे साथी से। और वो देख रही थी मेरे साथी की चादर को, अहसन मिन मुर्दी, मेरी से अच्छी।
फ़आमरत नफ्सहा साअतन, तो थोड़ी देर उसने अपने नफ्स से मशवरा किया। आमरत नफ्सहा, अपने से मशवरा किया थोड़ी देर, यानी गौर व फिक्र किया। सुम्मख्तारतनी अला साहिबी, फिर मुझे मेरे साथी पर पसंद कर लिया। फकुन्ना माना सलासन, बस फिर वो औरतें हमारे साथ रहें, यानी जैसे हमने निकाह मुता किया वैसे बहुत से साहबा ने निकाह मुता किया। निकाह मुता वाली औरतें हमारे साथ रहीं 3 दिन तक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन्हें अलग कर देने का, जुदा कर देने का हुक्म दिया। ये 2-3 सनदें और वही आ रही हैं, तो 3 सनद और शेख धड़ल्ले से से हाँ भाई जायज था तब, उसमें कौन सा मसला है। फिर भी शेख अब मसला है शेख, कैसे कैसे वैसे लोग देख सुनेंगे तो फिर क्या कहेंगे शेख। नहीं नहीं, निकाह तो धड़ल्ले ही से तो होता है। आजकल जो निकाह हो रहा है शरई निकाह है, वो भी तो धड़ल्ले से होता है। ऐसे ऐसे कोई चलता फिरता है ऐसे घर में जाके कहेंगे हम तुमसे शादी करेंगे, लोग कैसे पागल वगल हो गया क्या। ठुकाई कर देंगे। असल में माहौल जैसा होता है ना, तो उसके लिहाज से ठुकाई ना कोई करेगा और ना कोई बुरा मानेगा। अब जैसे वही यहाँ क्या नाम है, बताया था मैंने ना कि इनके यहाँ शियों के यहाँ अब भी जायज है। तो ईरान जो जाते हैं तो एजेंट लगे रहते हैं। अब तो अपने इंडिया में भी और नेपाल और पाकिस्तान वगैरह में भी शादी के भी एजेंट होने लगे हैं, पता है कि नहीं। नहीं शादी पता। जी के शेख। मामले, ऑनलाइन हाँ शादी होती है जी शेख, शेख। शादी.com। जी शेख, शाहीन बाग में शेख लिखा है कि रिश्तों के लिए यहाँ संपर्क करें। हाँ वो हाँ तो शायद हाँ। रोजाना अखबार में आता रहता है। नहीं नहीं, वो तो है ही है, वो तो खुल्लम खुल्ला है ना। लेकिन कुछ एजेंट रहते हैं, शादी कराते हैं, उनको उनको पैसा मिलता है, पैसा लेते हैं वो बहुत लेते दोनों हैं, तरफ बहुत दोनों से, तरफ लेते से, एक तरफ से, जी दोनों शेख। तरफ से। दोनों तरफ से लेते हैं। और ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, वो धोखा दे करके शादी करा देते हैं, गलत हो जाती है। इसलिए हाँ, बहुत सोच समझ करके, बहुत छानबीन करके शादी का मामला तय करना चाहिए। शेख आजकल फोटो है लड़का लड़का देखी जा रही है, तो बहुत गलत हो रहा है शेख आजकल। बहुत गलत हो रहा है ये। इसीलिए तो मोबाइल को मैं, ये जो मोबाइल चल रहा है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जब से इसका वजूद हुआ तब से इसको मैं फितना ही से ताबीर करता हूँ। फितना मैं इसको कहता हूँ, इसलिए कि ये बहुत बड़ा फितना है। कितनी शादियां इसे मोबाइल पर हो जाती हैं, मतलब ये कि ताल्लुक मोबाइल से हो जाता है। उसके बाद जो है लड़की बुला लेती है कि अच्छा आ जाओ फला जगह, मसलन बम्बई की है, मसलन कानपुर की है, वहां बुला लिया। उसने फोटो अपना जो दिखाया वो बड़ा खूबसूरत था, और जब अब वहां चला गया लड़का, उसके कब्जे में हो गया, तो अब वो चाहे काली हो, चाहे कलूटी हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो। हाँ, ऐसा यही शाहीन बाग में बात जी हो चुके हैं। जी। तो अब वहां लड़का फंस गया, करे क्या। अगर इनकार करता है तो जान धो दे, वो मरवा डालती है। और बहुत सी औरतें जो है वो इस किस्म की जो शादियां कराती हैं, वो बहुत सी औरतें धोखा देती रहती हैं। एक से शादी किया और गई उसके घर, रुखसती हुई, और उसके घर का सामान उमान जो कीमती चीजें थी, जेवर सेवर ले करके वो फरार हो गई, पता नहीं कहां चली गई। अल्लाह ताला बचाए। शेख हमारा ऐसा हुआ, दिखाना था शेख बड़े भाई को, दिखा छोटे भाई को। मदरसा चला रहा है शेख, हाँ, मोबाइल ही तो मदरसा चला रहा है। ओ, इसका कौन इनकार कर रहा है, मदरसा तो चला ही रहा है। कुरान हदीस भी
हाँ, कुरान हदीस की तालीम भी दे रहा है, तो आप लेकिन फितने से ताबीर कर रहे हैं ना। हाँ फितना तो कैसे? उसका इस्तेमाल जो हो सही तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन मैं इस वजह से फितना कहता हूं कि अक्सरियत नौजवानों की उसका इस्तेमाल गलत करती है, इसलिए मैं फितना से ताबीर कर रहा हूं। वरना ये तो आप जानते हैं शरीयत का मिजाज भी यही है कि बजाते खुद कोई चीज बुरी नहीं होती है, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। हाँ? तो फितना कहने का मकसद ये है कि इससे आदमी को बचना चाहिए, और जहां अच्छी चीजों का इस्तेमाल हो उसके लिए करना चाहिए। चलो, डायरेक्ट नहीं कह सकते ना फितना शेख, हाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते फितना है ये, उसके कुछ मकासद बयान करके तब बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है ना शेख। अरे तो अब आप लोगों को मैं आप लोगों को आकिल समझता हूँ ना, बालिग समझता हूँ, इतना बेवकूफ तो नहीं समझता ना। चलो, قال وحدثني حرملة ويحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا عام الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. ये सनद के अंदर इब्ने शहाब ज़ुहरी और उर्वा बिन ज़ुबैर दोनों ताबई हैं। कहते हैं कि बेशक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि बेशक कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को अंधा कर दिया है, कमा आमा अबसारहुम, जैसा कि उनकी निगाहों को अंधा कर रखा है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो निगाह के अंधे हैं लेकिन दिल के भी अंधे हैं। दिल के अंधे हैं, क्यों अंधे कहा? युफ्तून बिल मुता, वो निकाह मुता का फतवा देते हैं। युअर्रिदु बिरजुलिन, ये तारीज कर रहे थे एक आदमी के बारे में। यानी ये जो जुमला कहा है ऊपर वाला, आमल्लाहु कुलूबहुम कमा आमा अबसारहुम युफ्तून बिल मुता, तो एक आदमी से तारीफ कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये किनाया था, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा निकाह मुता की हिल्लत का फतवा देते थे। बाद में रुजू कर लिया, लेकिन ये उस दौर की बात है जब रुजू नहीं किया था। फनादा हो, तो उस आदमी ने यानी इब्ने अब्बास ने उनको पुकारा और फरमाया, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इन्नका लजिल्फुन जाफिन, जिल्फ माने अख, उजड, और जाफ के माने भी उजड होता है। तो एक का बदखुल्क का तर्जमा कर लो या उजड कर लो, एक का अक्खड़ कर लो। बेशक तू अक्खड़ और उजड आदमी है। भला आमरी लक़द कानतिल मुतअतु तुफ़अल, अल्लाह की कसम निकाह मुता किया जाता था इमामुल मुत्तकीन के ज़माने में। इमामुल मुत्तकीन से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह मुता किया जा रहा था। तो फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो आप बहुत अक्खड़ आदमी है। फ़क़ाल लहू ज़ुबैर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फ़जर्रिब बिनफ़्सिका, तो आप अपने नफ्स के साथ तजर्बा कर लीजिए, यानी निकाह मुता कर लीजिए अगर जायज़ है तो। अल्लाह की कसम अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको आपके पत्थरों से मार मार के रज्म कर दूंगा। तो ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने रुजू नहीं किया था। चलो आगे। قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينه هو جالس عند رجل सैफुल्लाह जो جاءه. है ना, सैफुल्लाह वो खालिद इब्ने वलीद है। जी उनका लक़ब था। उनका लक़ब था।
هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. इसमें भी वही वाकया है, लेकिन इसमें इन्होंने इन्हें अबू अमर अंसारी ने कहा महलन छोड़ दो तुम इस किस्म की बात को. चलो. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. दीन वनहा अन्हा. इब्ने अबू उमरा कहते हैं कि ये इब्तिदाई इस्लाम में रुखसत थी उस शख्स के लिए जो इसके लिए मजबूर हो, यानी शादी नहीं हो रही है, बीवी नहीं है उसके पास, मजबूरी है उसकी, हाँ, तो उस शख्स के लिए है जो इसके मजबूर हो, जैसे मैता, दम यानी दमे हराम, वलहमिल खिंजीर, तो आदमी की जान जा रही हो तो शरीयत ने इस किस्म की चीज़ें इतनी मिकदार में जिससे उसकी जिंदगी बच जाए जायज़ और मुबाह कर रखी है. फिर अल्लाह ताला ने दीन को मुहकम कर दिया और इस किस्म की चीज़ों से, इस निकाह मुता से मना फरमा दिया. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن صبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر في بردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن صبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. उमर बिन अब्दुल अजीज से ये हदीस बयान कर रहे थे. तो उमर बिन अब्दुल अजीज जलील कदर ताबी हैं, इनको उमर सानी कहते हैं. चलो. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عاينة قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن صبرة الجهني ونبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. अब इसमें सराहत आ गई, आला हरफ तंबी है, खबरदार बेशक ये यानी निकाह मुता हराम है तुम्हारे इस दिन से, यानी आज की तारीख से कयामत तक, और जिस शख्स ने कुछ दे रखा है यानी मुआवजा दे रखा है, फला याखुज हो, तो उसको वापस न ले. चलो. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهم ابن تسنية है والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن آكل لحوم الحمر الإنسية. इसमें इब्ने शहाब और अब्दुल्ला और हसन ये सब ताबी हैं. तो इसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुता से मना फरमाया खैबर के दिन, और हुमरे सिया, और इसी को हुमरे अहलिया भी कहा गया है. इंसिया या अहलिया यानी वो गधे जो पालतू हैं, जो मानूस किए जाते हैं, यानी घर में जो लोग रखते हैं अपना काम वाम के लिए, जैसे ये ईंट वगैरह ढोने के लिए जो रखते हैं, ये हुमरे इंसिया या अहलिया कहलाते हैं, घरेलू गधे, पालतू गधे. और एक होता है उसको क्या कहते हैं, हुमरे वहशिया. हुमरे वहशिया वो जायज है. चलो, उसके बाद छोड़ दो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद वाली, उसके नीचे अबू बकर बिन अबू शैबा वाली पढ़ो. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الدير وزهير بن حرب جميعا عن ابن وعينة قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن الحسن مع عبد الله بن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. चलो, ये भी उसी के माना में है. इसके बाद आप छोड़ के चले जाइए बाप पर.
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना इकट्ठा किया जाए औरत और उसकी फूफी के दरमियान, और ना औरत और उसकी खाला के दरमियान। यानी किसी औरत से एक आदमी ने शादी कर रखी है, अब उस औरत के होते हुए उसकी फूफी से या उसकी खाला से शादी ना करे, या खाला या फूफी से शादी कर रखी है तो उसकी भतीजी और उसकी भांजी से शादी ना करे। यानी दोनों को बैत बीवी बना करके रखना जायज नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि दो सगी खाला और भांजी या चची और क्या फूफी और वो क्या कहते हैं फूफी और भतीजी, तो ये रिश्ता जो है मजबूत होता है। और इस्लाम सिला रहमी का, रिश्ते को जोड़ने का ताकीदी हुक्म देता है। जब दोनों एक आदमी के निकाह में हो जाएंगी तो वो पुराना रिश्ता टूट जाएगा और दोनों सौकन हो जाएंगी, और सौकनों में जो चपकलिश होती है वो दोनों में रहेगी। कौन सी चीज से? चपकलिश? चपकलिश ये क्या है? चपकलिश ये तो उर्दू का लफ्ज है जी, यानी इख्तिलाफ। अनुबंध। हाँ अनुबंध शेख, अनुबंध। हाँ, अब इस हदीस से यही साबित हुआ कि औरत और उसकी फूफी को या औरत और उसकी खाला को जमा करना जायज नहीं है। अब चाहे फूफी और खाला हकीकी हो, यानी बाप की बहन हो, माँ की बहन हो, या मजाज हो, यानी बाप की यानी दादा की बहन हो, दादा की बहन हो, या दादा के बाप की बहन हो, या नीचे दर्जे की हो या ऊपर दर्जे की हो। और इस किस्म के निकाह की हुर्मत पर उलमाए इस्लाम का इजमा है। अलबत्ता खवारिज की और शियों की एक जमात है जो कहती है कि इस किस्म की औरतों को जमा करना यानी एक साथ निकाह में रखना जायज है। और उन्होंने कुरान की एक आयत से इस्तिदलाल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुहर्रमात की फहरिस्त बयान की है, फला 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 औरतें हराम हैं। उसके बाद फरमाया है वउहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और तुम्हारे लिए हलाल हैं इनके अलावा औरतें, यानी ऊपर जो फहरिस्त बयान की उनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। इसी से उन्होंने इस्तेदलाल करके कहा है कि इस किस्म का निकाह जायज है। जुमहूर उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि ये इस्तेदलाल गलत है। कुरान के इस उमूम को, वो हिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, कुरान के इस उमूम को इस हदीस पाक से और इस मजमून की दूसरी हदीसों से खास किया गया है। और कुरान की तखसीस, कुरान के उमूम की तखसीस खबर वाहिद से जायज है। तो गोया आपसे कोई कहे कि भाई इस हदीस में और कुरान की आयत वहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम में तजाद हो रहा है, इस आयत इस हदीस से साबित हो रहा है कि इस किस्म का रिश्ता हराम है। और मुहर्रमात की फहरिस्त जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम,
اس کا مطلب کہ مذکورہ بالا جو فہرست ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ان میں لا یجمع بین المرأۃ و عمتها ولا بین المرأۃ و خالتها کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ جائز ہے۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں قرآن کے عموم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کیا گیا ہے اور یہ جائز ہے۔ چلو چلیں جناب۔ قال وحدثنا محمد بن رمح المهاجري قال أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها۔ ہاں تو وہی عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ، اس طرح سے 4 عورتیں ہو گئیں، اسی کو کہا ہے 4 عورتوں کے نکاح سے منع کیا ہے۔ قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت الخالة۔ پھوپھی کا نکاح نہ کیا جائے بھتیجی پر، یعنی کسی کے نکاح میں بھتیجی ہے تو اس کے رہتے ہوئے اس کی پھوپھی سے نکاح نہ کرے، ولبنۃ الاخت اور نہ بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، علی الخالہ خالہ پر، یعنی خالہ کے ہوتے ہوئے کسی کے نکاح میں بھتیجی سے، اس کی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ 1 2 3 چھوڑ دیجئے۔ ابو بکر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صحفتها ولتنكح فإنما لها تنکح فإنما لها ما كتب اللہ لها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ پیغام دے آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر، خاطبہ یخطب خطبتاً تقریر کرنا، خاطبہ یخطب یہ بھی نصرہ ہی سے آتا ہے، خاطبہ یخطب خطبتاً نکاح کا پیغام بھیجنا، نہ پیغام بھیجے آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر، یعنی کسی عورت کے پاس زید نے نکاح کا پیغام بھیج رکھا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کا پیغام آیا ہوا ہے فلاں کے پاس، تو آپ اس کے پاس نکاح کا پیغام نہ بھیجیں۔ لیکن مطلق نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجنا منع نہیں ہے، جیسا کہ فاطمہ قیس رضی اللہ عنہا کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے شوہر نے جب طلاق دے دی، عدت گزارنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عدت سے باہر ہونا تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب عدت سے باہر ہوئی تو آپ کے پاس گئیں اور بتایا کہ میں عدت سے باہر ہو گئی ہوں اور میرے پاس فلاں فلاں یعنی معاویہ بن ابو سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہما کا پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں پیغاموں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ہی اسامہ بن زید سے تم نکاح کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی پیغام گیا ہوا ہے کسی کا اور ابھی بات چیت آگے نہیں بڑھی ہے، پیش قدمی نہیں ہوئی ہے، تب نہیں منع ہے۔ 1 پیغام 2 پیغام 4 پیغام چلا جا تب بھی جائز ہے۔ منع کب ہے؟ منع اس صورت میں ہے کہ پیغام گیا اور ان پیغاموں میں سے کسی ایک کی طرف پیش قدمی ہو گئی ہے، معاملہ طے تمام ہونے کے مرحلے میں ہے، تب پیغام نہ بھیجے دوسرا آدمی۔
आगे फरमाया वाला यसूम वाला सौम अखी है, सामा यसूमो सौमन भाव ताव करना, और ना भाव करे अपने भाई के भाव पर। इस सूरत यह है कि सामान का मालिक और सामान का खरीदार, यानी बाय और मुश्तरी कह लीजिए, बाय और मुश्तरी दोनों बै पर मुत्तफिक हो गए, लेकिन अभी बाकायदा बै पक्की नहीं हुई है। मामला तय तमाम हो गए लेकिन बै पक्की नहीं हुई है, अक्द नहीं हुआ है अभी। इतने में दूसरा आदमी गया, बाय से कहता है कि तुम ये सामान फलां से बेच रहे हो, उसको ना दो, मैं उसको तुमसे खरीद लूंगा। तो इसको कहेंगे ला यसूम अला सौम अखी। और वो जुमला तो ऊपर गुजर ही चुका है, ला कहल मरा। आखिर में एक टुकड़ा आया है, वला तस अलुल मरा, और ना सवाल करे ना मुतालबा करे औरत अपनी बहन की तलाक का, ताकि उड़ेल ले उसके बर्तन को। ये किनाया है कि एक औरत की शादी हुई है, उसका शौहर है, और वो दूसरी शादी या तीसरी शादी करना चाहता है। तो वो औरत जिससे शादी करना चाहता है वो मुतालबा कर रही है कि पहले जो आपके पास बीवी है उसको तलाक दे दीजिए, तब मैं आपसे निकाह करूंगी। तो फरमाया कि नहीं, ऐसा मुतालबा उसको नहीं करना चाहिए, शरीयत ने एक से जायद की इजाजत दी है। ये क्यों करती है औरत? ताकि उसका बर्तन उड़ेल ले, यानी जो कुछ वो औरत फायदा उठा रही थी वो फायदा तन्हा इसको मिलने लगे। आपने फरमाया चाहिए कि निकाह कर ले, यानी मुतालबा ऐसा ना करे, निकाह कर ले। फ़इन्नमा लहा मा कतबल्लाहु लहा, इसलिए कि उस औरत के लिए वो चीज होगी जो उसके लिए अल्लाह ने मुकद्दर कर रखी है, यानी जो दोनों की किस्मत में होगा वो दोनों को मिलेगा। लिहाजा ऐसा मुतालबा औरत ना करे। बस शायद इसके बाद बाब आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।